اب جو بات عرض کر رہا ہوں اسے غور سے سنیے گا. ایک سوچ بن گئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہماری کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ معاذ اللہ ہمارا دین ہے. ہم اس لیے پوری دنیا میں مار کھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس دن تم سچے مسلمان بن گئے مولا تمہیں عزت و سربلندی عطا کرے گا. یہ لپ سروس والا اسلام جو ہے نا اس کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں. خواجہ بھی تو ہندوستان تشریف لائے نا, کتنی عزت, زمین پر تھے تب بھی عزت. 800 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا زمین کے اندر ہیں تب بھی عزت. بندہ نواز کو آج بھی عزت, کل بھی عزت اور ہمیشہ کی عزت. کیوں؟ اسلام پابند تھے. ہم اسلام پسند ہیں, ہمیں اسلام پسند ہے لیکن ہم اسلام پابند نہیں. اسلام چاہتا ہے کہ تم پابندی اختیار کرو, اسلام پابند بن جاؤ. تو عرض یہ کر رہا تھا نیکی, نیکی تمہیں خوش کر دے. کسی غریب نے تم سے مانگا, تم نے اٹھا کر دے دیا, ارے یار میں نے کہاں دے دیا اس کو. یہ نیکی کر کے افسوس کرنا یہ کامل مومن ہونے کی علامت نہیں, بلکہ دے کر کے دل میں یہ خوشی محسوس کرنا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا دیا ہوا تیری راہ میں میں نے خرچ کر دیا, میرے مولا تو اسے قبول فرما لینا. آئیے اس کو سمجھاؤں. کبھی ایسا ہوتا ہے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے, مسجد بنانی ہے, فنڈ ریزنگ کا معاملہ ہوا, بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دعوت دی گئی, آ گئے سب. یہ مسجد بنانی ہے بھئی آپ کی طرف سے کتنا؟ کسی نے کہا 10,000, دوسرے نے کہا 25,000, تیسرے نے کہا 50,000. اب بڑا سیٹ جو بیٹھا تھا اس نے سوچا کہ یار اس نے 50 لکھا ہے, میں اگر کم لکھاؤں گا تو میری عزت کیا رہے گی. اچھا میری طرف سے 1 لاکھ لکھ لو. گھر گئے تو بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا 1 لاکھ لکھا. کیا کروں, سب لکھا رہے تھے مجبور ہو کر لکھانا پڑا. لکھا دیا ہوں, ابھی دیا کہاں ہوں. یہ سوچ بن گئی. لیکن میں یہاں جب صدیق اکبر کو پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام پر طلب فرمایا, سب کچھ لے کر آئے, یہاں تک کہ اپنے لباس کو بھی لا کر کے پیش کر دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا. اب آپ قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر کہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے اور اس کے بعد عرض کرنے لگے سرکار صدیق اکبر سے پوچھو کہ سب کچھ آپ کے قدموں میں لا کر کے یہ خوش تو ہیں, قدموں میں دے کر خوش تو ہیں. جب صدیق اکبر سے پوچھا گیا تو صدیق اکبر کہتے ہیں اگر میرا مولا قبول کر لے تو میں یقیناً خوش ہو جاؤں گا. آپ اندازہ لگائیں سب کچھ لٹا کر کے بھی صدیق اکبر ناراض نہیں ہیں. لیکن ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم دے کر کے پسمردہ ہو جاتے ہیں, افسردہ ہو جاتے ہیں, غمگین ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کم ہو گیا. نہیں, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بہت کچھ موجود تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت کچھ لٹا دیا تھا اور بہت کچھ خیرات کر دیا تھا. تھوڑا سا بچا تھا, حضور تشریف لائے اور تشریف لا کر پوچھا عائشہ کچھ بچا ہے؟ کچھ ہے؟ تو عرض کرنے لگی سرکار بس یہ تھوڑا سا بچا ہے. سرکار نے فرمایا یہ نہیں بچا, جو تم نے اللہ کے نام پہ دے دیا نا وہ بچ گیا. آپ اندازہ لگائیں یہ سوچ اور یہ ٹریننگ تھی, یہ تربیت تھی. تو آج آپ کے ذہن میں آپ کو یہ بات بٹھانی ہے کہ نیکی کر کے کبھی اپسیٹ نہیں ہونا, نیکی کر کے خوش ہو اور نیکی کرنے میں جلدی کرو, اس لیے کہ آج نیکی کا جذبہ ہے, کل پتہ نہیں نیکی کا جذبہ رہے یا نہ رہے, سرد پڑ جائے نہیں معلوم. آج آدمی کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے میں یہ کر لوں, پھر اس کے بعد اس کا شوق کب ٹھنڈا ہو جائے نہیں معلوم. تو جب بھی نیکی کا خیال پیدا ہو, نیکی کرنے میں سرکار فرماتے ہیں جلدی کرو اور وہ نیکی کر کے خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی. دوسری بات,
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वसाअत का सज्जिअतुक, और तुम्हारा गुनाह तुम्हें गमगीन कर दे। जहां कोई गुनाह हुआ खाना छूट गया, या अल्लाह मैंने ये क्या कर दिया, मैंने किसी लड़की को क्यों देख लिया, मैंने किसी का माल क्यों खा लिया, मैंने गीबत क्यों कर ली, मैंने नमाज क्यों छोड़ दी, मुझसे ये बुरा काम कैसे हो गया, मैंने ये पिक्चर क्यों देख ली, मैंने ये गंदा काम क्यों कर लिया। ये गुनाह आपको बेचैन कर दे। अब उसकी वजह से खाना छूट रहा है, खाना खाने में दिल नहीं लग रहा, पानी पी रहे तो कड़वा महसूस हो रहा है, या अल्लाह मैंने ये क्या कर दिया। अगर ये तबीयत बन जाए कि गुनाह आपको गमगीन कर दे, तो फिर कोई आपको कुछ भी फतवा दे, हुजूर फरमाते कि मैं फतवा दे रहा हूं तुम मोमिन हो, तुम मोमिन हो। लेकिन आज गुनाह करके गमगीन होने वाले दिखाई नहीं देते। आज तो गुनाह करके कहे लगाते नजर आते हैं, गुनाह करके मौज मस्ती करते नजर आते हैं, खुश नजर आते हैं। लड़कियां हो या लड़के हो, अगर लड़कियों के ताल्लुकात लड़कों से हैं या लड़कों के ताल्लुकात लड़कियों से हैं, तो अपनी सहेलियों को, अपने दोस्तों को बताते हुए फख्र महसूस करते हैं कि उसके साथ हमारे ऐसे रवाबित हैं, ऐसा मामला है, वो मामला है, ये मामला है, और ये जिंदगी गुजरती नजर आ रही है। गुनाह जब अल्लाह न करे सरजद हो जाए तो बेचैन हो जाओ, इसलिए कि गुनाह कभी भी तुम्हें सुकून की दौलत नहीं दे सकता। गुनाह तुम्हें बेचैन करेगा, गुनाह तुम्हें बेकरार करेगा, गुनाह की वजह से तुम्हारी दुनिया और आखिरत के अंदर परेशानियां इस्तकबाल करेंगी। तो कभी भी अल्लाह न करे, सदबार न करे, गुनाह सरजद हो जाए, फौरन नेकी कर लो, सजदे में चले जाओ, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करो, मौला को मनाने की कोशिश करो। ऐ करीम, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह वाले गुनाह के तसव्वुर से लरस जाते थे और गुनाह के तसव्वुर से कांप जाते थे। और आज का मुसलमान गुनाह करके कहे लगा रहा है। हमारे नौजवानों की जवानियां आवारा हो गई हैं, बर्बादी के दहाने पर हैं, बदकिरदारियां फैल रही हैं, ड्रग्स फैल रहा है, मंशियात फैल रही हैं, शराब फैल रहा है, नशा फैल रहा है, नमाजें छूट रही हैं। अल्लाह अकबर। इंसान अब गुनाह को गुनाह मानने के लिए और गुनाह को गुनाह तसव्वुर करने के लिए और गुनाह से अफसुर्दा होने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि आज का इंसान और आज का मुसलमान गुनाह करके ऐश कर रहा है, गुनाह करके मस्ती कर रहा है, गुनाह करके मौज कर रहा है और गुनाह करके कहे लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई गुनाह से और गुनाह के याद आने से कांप गया, आप जानते हैं तसव्वुर से कांप गया, तसव्वुर से, उसका मकाम क्या है जानते हैं आप? अगर किसी नौजवान को कोई औरत जो बहुत ही खूबसूरत हो और गुनाह की दावत दे और वो बंदा लरस जाए कि मैं अपने रब के सामने कैसे गुनाह करने के बाद कयामत में खड़ा रहूंगा, उस डर की वजह से उस औरत की गुनाह की दावत को ठुकरा दे और उससे कह दे इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अपने अल्लाह से डरता हूं, मेरे आका फरमाते अल्लाह को कल उसे अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। फारूक आजम के दौर में एक इबादत गुजार नौजवान को ऐसे ही किसी औरत ने गुनाह के सिलसिले में उभारना चाहा, वो लरस गया, कांपा, गुनाह से बचा और अल्लाह के डर की वजह से उसकी रूह परवास कर गई। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब उसे दफन किया गया,
फारूक आजम को पता चला, उसकी कब्र पर पहुंचने के बाद फरमाया, बता तेरे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया। कब्र से आवाज आती है, अल्लाह का वादा हक है, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह से डर कर खड़ा रहा, यानी अल्लाह से डरा और गुनाह नहीं किया, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाता है। सुनो अमीरुल मोमिनीन, मेरे करीम ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, गुनाह से बचो, गुनाह से डरो। और ये समझ देना, अब आखिरी बात मैं अर्ज करता हुआ चलूं, गुनाह कभी भी खैर नहीं लाता, गुनाह हमेशा अपने साथ परेशानियों को लाता है, गुनाह अपने साथ हमेशा मुसीबतों को लाता है, गुनाह हमेशा अपने साथ तकालीफ को लाता है। और कभी ऐसा होता है कि गुनाह अगर सरजद हो गया और बंदा उस गुनाह को याद करके रोता रहे और उस गुनाह की वजह से पशेमा हो और आंसू बहाता रहे, तो आप जानते हैं वही आंसू बहाना और गुनाह पर नादिम होना अल्लाह को इतना पसंद आता है कि मौला उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाता है। तो याद रखो, कभी किसी छोटे गुनाह को छोटा न समझना। ये मत सोचना ये तो छोटा गुनाह है। मैं आपको मिसाल के जरिए समझाकर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर चलता हूं। बारिश में आप अपने कपड़ों को संभाल कर रास्ते से गुजरते हैं कि कहीं चिकड़ के छींटे आपके कपड़े पर न उड़ जाएं और आपका कपड़ा खराब न हो जाए। जब आप निकलते हैं दामन को बचाते हुए चलते हैं, लेकिन 2-4 छींटे अगर आपके कपड़े पर उड़ गए और आपने देख लिया कि अब कपड़ा पीछे से गंदा हो चुका है, तो फिर आप अपने दामन को छोड़ देते हैं कि अब गंदा तो हो गया, अब कितना बचाना। बस यही छोटे गुनाह की मिसाल है। छोटे गुनाह करते करते जब आदत बिगड़ जाती है तो फिर आदमी बड़े गुनाह के लिए भी तैयार हो जाता है, दामन छोड़ देता है, इतने तो हो गए और भी हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए फरमाया गया, छोटे गुनाह को छोटा समझ के करो मत। वजह क्या है? वजह क्या है? कभी एक छोटी सी चिंगारी पूरी बस्ती को जलाने के लिए काफी हो जाती है। हो सकता है एक छोटा सा गुनाह जहन्नम में जाने का सबब बन जाए। और इसी तरीके से किसी छोटी नेकी को छोटा समझ के छोड़ो मत। हो सकता है जिस तरीके से मरने वाले को पानी का एक कतरा जिंदगी दे देता है, ऐसे ही एक छोटी सी नेकी अगर तुम कर लो तो हो सकता है मौला इसी नेकी को तुम्हारी नजात का जरिया बना दे। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हदीस की रोशनी में ये समझ लो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारी नेकी तुम्हें खुश कर दे और तुम्हारा गुनाह तुम्हें गमगीन कर दे, बस तुम मोमिन हो। अब पता ये चला, हमारे ईमान को अगर हमें देखना है और जांचना है तो उसका तरीका ये है कि जब जब हम नेकी करेंगे हमारे दिल में खुशी महसूस होनी चाहिए। और अल्लाह न करे कभी हमसे गुनाह हो गया तो हम खाना छोड़ दें, रोना शुरू कर दें, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, गुनाह की वजह से आंसू बहाना शुरू कर दें और हमें अच्छा न लगे। अगर हमारी ये कैफियत बन जाती है तो रसूल आजम फरमाते, फ़ान्त मुमिन, तुम मोमिन है। और अब अगर ऐसा कोई मोमिन बन गया तो कुरान कहता है, वांतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, अब कामयाबी तुम्हारा ही मुकद्दर है। अगर तुम कामिल मोमिन बन जाओ तो कामयाबी इसी तरह से हासिल होगी जब हम ईमान के तकाज़ों को पूरा करेंगे और कामिल मोमिन बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू, आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे, आपको, सबको अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।